न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 100 क्वार्टर के इलाके कोरंगी में और यहाँ पे तहरीक अवाम पाकिस्तान के नाम से यहाँ पे तहरीक का लॉन्च किया गया और चलता हूँ और आपकी मृत्यु पर आप क्या करेंगे आज इसके हवाले से। أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدقت يا رب العالمين. جنگ کے لیے تحریک عوام پاکستان زاہد عوام صاحب پہلے بھی صف اول میں تھے، آج بھی صف اول کے اندر ہے اور انشاءاللہ العزیز ہمارے پاکستانی بنگالی بھائیوں کے حقوق کے تحفظ کی اگر جو حقیقی ترجمان جماعت بنے گی تو وہ تحریک عوام پاکستان ہے. تحریک عوام پاکستان کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ زاہد عوام صاحب کے جو مراسم ہیں وہ کسی سے ڈٹے چھپے نہیں ہیں. تحریک عوام پاکستان کے چیئرمین جناب زاہد عوام صاحب نے آپ کے حقوق کے لیے ہمیشہ بات کی ہے، ہر فورم پر بات کی ہے، ہر جگہ بات کی ہے. تو اسی لیے آپ کی حقیقی حصول کی ترجمان جو جماعت ہے وہ تحریک عوام پاکستان ہے. شہر بنگال سچ بات بولوں، ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مسلم لیگ میں لانے والا وہ شخص ہے. ہمارے پاکستان میں بسنے والے لاکھوں پاکستانی بنگالی جو بنگالی وزیر اعظم بھی تھے، جنہوں نے میمن مسجد گولڈن مارکیٹ میں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے افتتاح کیا. ہمارے بنگالی لیڈر آج قائد اعظم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. ہمارے اور ایک لیڈر تاحیات وفاق وزیر ناظم الدین بلوچ صاحب، خواجہ خیر الدین صاحب آج شناختی کارڈ کے وہ لوگ جو تھوڑے تھوڑے پیسوں میں بکتے ہیں، رشوت خور، ایک حرامی مرکز جسے عوامی مرکز بولتے ہیں، ایک حرام باغ جسے حرام باغ بولتے ہیں. ہمارے بنگالیوں کو کہتے ہیں تم ثبوت لاؤ. میں کہتا ہوں ہمارے ثبوت محترم جناب AK فضل الحق وہ ہمارے ثبوت ہیں. ہمارے ثبوت جناب محمد علی صاحب ہیں. ہمارے ثبوت خواجہ خیر الدین صاحب ہیں. ہمارے ثبوت پاکستان میں جو MPA بنے ہیں ضیاءالحق ہوا ہے. ہمارے ثبوت یہاں کے جو ناظم چیئرمین ہیں مولانا رفیق الحسین ہوا ہے. اگر پاکستانی نہیں ہوتے یار یہ تمہارے باپ کے ہے کیا؟ تم نے کیوں بنایا انہیں ناظم؟ MPA کیوں بنایا؟ وفاقی وزیر کیوں بنایا؟ قائد اعظم کے ساتھ کیوں چھپایا؟ کہتے کہ تم بنگالی ہو. ابے بنگالی ہونا کوئی جرم نہیں ہے. 1965 کے جنگ میں ان بنگالیوں نے اپنے سینے پہ بم رکھ کر اور انڈیا مرد کا نعرہ لگا کر انڈیا کو بلایا. آج کاش آج یہ بنگال ریکارڈ ہوتا اور انڈیا ہمارے سامنے آج بات کرنے کی جرات نہیں ہوتا. انہیں پتا ہے بنگالی جب جھاگ جائیں گے انڈیا کا نیست نابود کریں گے.
बंगाली तक जाएंगे, इसराइल का निस्नाबूद करेंगे। मधुबन भाई जवान साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, खुदा की कसम ऐसे ऐसे वाकयात हैं। एक लड़का है, इसके खुद के पास शनाख्ती कार्ड है, उनके बाप के पास शनाख्ती कार्ड है, उनके दादा के पास शनाख्ती कार्ड है, उनके परदादे के पास शनाख्ती कार्ड है। 1961 में पाकिस्तान में आया है। आज उस लड़के को शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर दिया है कि तुम बंगाली हो। यार बंगाली होना कोई जुर्म तो नहीं है ना। हमारे अब्बू से पूछो ना, क्यों बंगाली शादी किया उसने यहाँ के कौन से क्यों शादी नहीं किया। बंगाली होना तो कोई जुर्म नहीं है ना। मुसलमान तो है, पाकिस्तानी तो है, पाकिस्तान में रह रहा। पाकिस्तान के अंदर इनका जो किरदार है वो किसी भी तरीके से जो है वो ढका छुपा नहीं है। चाहे वो इनका किरदार पाकिस्तान की अफवाज के अंदर हो एम आलम की सूरत में, चाहे पायलट सैफुल इस्लाम की सूरत में। बाकी जहाँ तक 71 के हादसे की बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो भी जो है वो डिबो दिया गया। तो हम कायदे तहरीक अवाम पाकिस्तान जाहिद रहमान साहब की क़यादत में जो बंगाली अवाम के साथ जो जुल्म और ज्यादती जो है वो की जा रही है और इनको जो है वो तासुब का जो है वो निशाना बनाया गया है। पहले भी जो है वो जद्दोजहद करते रहे हैं और आइंदा भी जद्दोजहद करने का अज़म जो है वो रखते हैं इस तहरीक के लिए और अपने इस कौम के लिए इस मिशन को कामयाब करें इंशाअल्लाह ताला रब्बुल अजीज। हम भी इस तहरीक से मलीर से वाबस्ता हैं और अपने चेयरमैन जाहिद अवान साहब का और हमारी जितनी भी तंजीम की पार्टी की जितने भी सीनियर उहदेदारान हैं उनके बेहद मशकूर है कि उन्होंने हमें ये इज्जत बख्शी। हम इन सब पंडाल वाले जितने भी भाई आए हुए हैं उन सबको भी यही गुजारिश करता हूँ कि आप भी इस तहरीक का एक मजबूत हिस्सा बने और जितने भी हमारे जैसे महरूमियाँ हैं इस महरूमियों को ख़त्म करने के लिए एलीट क्लास नहीं आएगी। हम सब आपको आगे निकलना होगा और इस तहरीक को और अपने जितने भी हमारे मसाइल हैं उसको हल करने के लिए कोई लाहे अमल तैयार करना होगा। तो मैं अर्ज करता चलूँ, ये हमारे पाकिस्तानी बंगाली भाइयों का हक है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब का जो नाम लिया, तो उस हवाले से तो मैं खुद गवाह हूँ कि 1949 की एक मस्जिद है हमारे इलाके में, गुलशन इकबाल टाउन में। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम कायदे तहरीक भाई जाहिद अवान साहब और स्टेज पे बैठे हुए तहरीक के तमाम जिम्मेदारान, ओहदेदारान, कारकुनान, अली अकबर शाह गोट के बाशऊर अवाम और मेरे ख़वातीन बहनें, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक गरीब मुतवस्सित तबके की जमात है, ये यंग लोगों की जमात है, नौजवानों की जमात है। इस जमात के जो सरपरस्त हैं जाहिद अवान साहब, उन्होंने पहले भी आप लोगों के हकूक़ की आवाज़ उठाई, खास तौर पे बंगाली भाइयों की, जो आप लोग के NIC के मसले थे, शनाख्ती कार्ड के, आगे भी इंशाल्लाह उठाएंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग हमारे बाजू बने, आप लोग हमारी ताकत हैं। आगे इंशाल्लाह आप लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस, उसकी भी आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी बंगालियों की और जो मेरे साथ आए हैं इन सब की पार्टी है। ये पार्टी मैंने रजिस्टर क्यों करवाई, जरा आपको बताता चलूं, और से सुनिएगा। 15 साल मैंने आप लोगों की कौम के साथ मिलके लगाए हैं आप लोगों के मसाइल के लिए। पहले मैं पाक मुस्लिम अलायंस में रहा, मछली के निशान में सदर मरकजी, कमाल के बाद अल्लाह बख्शे कमाल को कालीन वाला। हमने हर फोरम पे, हर एजेंसी को, हमने अपना असेंबली में, सेनेट में, हमने सारी जितनी एम्बेसियां हैं, NGOs हैं, उसमें आपके हुकूक के लिए आवाजें उठाई। मैंने 2 चीजें नोट की बहुत सी, कि वो जो भी आते हैं अपनी सियासत चमका के और आप लोगों को इस्तेमाल करके चला जाता है। उसके बाद वो आप लोगों के हुकूक की आवाज भूल के अपनी दुकान चमकाने की कोशिश करता है। माजी में भी मैंने DG नादरा से आप लोगों की मीटिंग, 3 बार आप लोगों की मीटिंग रखवाई।
उस टाइम मैं दूसरी पाक मुस्लिम अलायंस में था और दीवान लोगों के साथ था, तो मैंने डीजी नादरा पे मीटिंग रखवाई। शबीर पोलानी साहब गवाह हैं, ये अबू तालिब साहब बहुत सीनियर बंदे हैं, ये गवाह हैं इस चीज के। और मैं सामने नहीं होता था, जैसे लोग छोटा सा काम करते हैं और अपने को हाईलाइट करते हैं लोगों के सामने। मेरी आदत है आपका काम करना, आपके मसाइल हल करना, जो पीछे बैठ के मैं करता रहा हूं। ये अजीज मेरे घर आता रहा है, आपके कौम के लोगों के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ आता रहा है, पुलिस के मसले लेके आता रहा है। मैंने मुख्तलिफ जगह पे आप लोगों के कई बार पुलिस से लोग छुड़वाए, मदद की, जो किया। मैंने क्या किया, अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया। मुझे आप लोगों की कौम से प्यार है, मोहब्बत है, मुझे कोई लालच नहीं है। आज तक मैंने, मुझे बताएं कोई लालच में काम किया हो, आप लोगों से कोई काम लिया हो, हमेशा आप लोगों के मसाइल के लिए खड़ा हुआ हूं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मफाद के, मकसद के। मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग खुद, आप लोगों के इतना वोट बैंक है, आप लोगों में से आप लोगों के बच्चे आए, हमारा साथ दें और रहमानों तक पहुंचे, यूसीओ के चेयरमैन बने, काउंसलर बने, नाजिम बने, एमपीए बने। क्यों नहीं बन सकते? क्या आप लोगों में, जब बाबा नूर ने जैसे कहा, आप लोगों में किसी चीज की कमी है? बंगालियों के क्या हाथ कम है? बंगालियों के क्या दिमाग में कमी है? बंगाली माशाल्लाह वो कौम है, पाकिस्तान के हर फोरम में जंग से लेके पाकिस्तान बनने में उन्होंने आगे आगे होकर खिदमत अंजाम दी है। जी, मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ तहरीक अवाम पाकिस्तान का। जैसे कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन जो है वो 1 अगस्त से ही उसका आगाज़ हो चुका है। तो उसकी एक ख़ास वजह यह है कि जो पिछले दिनों इंडिया ने जिसारत की हमारे मुल्क पे हमला करने की और हमारी फ़ौज ने उसे नाको चने चबवाएँ, उसकी सेलिब्रेशन के सिलसिले में आज हमारे चेयरमैन जाहिद अवान साहब के हुक्म पे हम सब रैली लेके यहाँ पर आए हैं और हम अपनी जो बंगाली कम्युनिटी है जो कि बंगला ज़ुबान बोलती है उनके साथ ये इज़हार यकजहती भी है कि तहरीक अवाम, क्योंकि अवाम की जमात है और अवाम के मसाइल को हल करने के लिए आई है, तो इसमें इनको भी एक ये एहसास दिलाना है कि ये भी उसी तरीके से बावकार पाकिस्तानी है जिस तरीके से पाकिस्तान और अक़वाम रहती है। इंशाअल्लाह चेहरे बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। थैंक यू। मैं यही कहना चाहूँगा जैसे कि वाइस चेयरमैन साहब ने कहा, सीनियर वाइस चेयरमैन ने राशिद अवान साहब ने, कि ये जो 14 अगस्त है ये एक स्पेशल 14 अगस्त है। और मतलब ये जो 14 अगस्त है ये एक स्पेशल 14 अगस्त है जो हमारी पाक फ़ौज ने इंडिया को जवाब दिया। तो इस चीज़ को लेके इस दफ़ा अलग ही जश्न है इस 14 अगस्त में। पिछले सालों की तरह के मुकाबले में इस साल की जो 14 अगस्त है ये थोड़ी सी मुनफरिद इस वजह से है कि इस साल अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मारका हक की सूरत में जो है एक फ़तह मुबीन अता फरमाई, जिससे पाकिस्तानी कौम और अफवाज का जो मोराल है अल्हम्दुलिल्लाह आलमी सतह पर भी जो है पाकिस्तान का जो है कदकात जो है वो बढ़ा हुआ है। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान इसी तरीके से तरक्की के जो मनाजिल है वो तय करता रहेगा और आने वाली जो 14 अगस्त होगी वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो खुशियों का बाइस होगी जिस तरीके से इस तरीके। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इवेंट तो आपको पता है कि जश्न, फिर दोबारा आप अपने नाम का तारुफ कराएं, पार्टी का, उसके बाद आप मेरे से जो पूछें ठीक है। ये आप पार्टी के सदर हैं और पार्टी क्या? जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तहरीक अवाम पाकिस्तान हमारी जो है पॉलिटिकल जमात है, उसका मैं चेयरमैन हूँ, मोहम्मद जाहिद अवान। और आज जो हमने ये पंडाल सजाया, आपको पता है 14 अगस्त आ रहा है और एक 14 अगस्त की आमद है। उसके अलावा 14 अगस्त इस बार जो है स्पेशल 14 अगस्त है। ये वो 14 अगस्त जो आम होते हैं वो भी हमारे खुशी का एक बहुत बड़ा दिन होता है, लेकिन इस बार जो हमारा अपना फौजियों ने, पाकिस्तान अफवाज ने जो इंडिया को खास कर अपना मार्का सर किया है और एक उनको ज़बरदस्त किस्म की अपना मुकी दी है, जिसकी वजह से इस दफ़ा 1 अगस्त से ही अवाम जो है एक ईद का समा है और 14 अगस्त मना रही है। और जो अपना हमारे से कई गुना बड़ी ताकत थी इंडिया, जिसको हमने घंटों में इतना दुनिया में उसको हमने नेस नाबूद, उसके जो ख्यालात थे, उसके जो अपना इरादे थे, उनको हमने नेस नाबूद किया। दुनिया में पाक अफवाज ने जो हमें पाकिस्तानियों का सर जो है हमारा बुलंद किया है,
जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का मोराल अप हुआ है दुनिया भर में, पाक फौज का मोराल अप हुआ है, दुनिया भर में इज्जत मिली है पाकिस्तानियों को। इसलिए ये 14 अगस्त एक ईद का समा है और एक तांता बना हुआ है। अभी आप आए, हम रैली लेके जैसे आए हैं तो रास्ते में लाखों लोगों ने रैलियां निकाली हुई थी। इस तरह एक खुशी का समा था, जैसे कि घर की खुशी होती है, एक हर बंदे के एक फर्द की खुशी होती है, इस तरह खुशी मना रहे थे। इसी तरह आज हमने पाकिस्तान तहरीक अवाम के फोरम का एहतमाम किया, आलीशान रैली का, और रैली के साथ साथ जलसे का एहतमाम किया। हमारी पाकिस्तानी बंगाली बरादरी है यहाँ पे कुरंगी में, स्वा क्वार्टर में, उन्होंने हमें शानदार इस्तकबालिया दिया है, जिसमें हम आए हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके साथ जश्न आज़ादी की तकरीब का भी जश्न बनाएंगे और उनके मसाइल का हल भी ढूंढेंगे और उनको बताएंगे कि तहरीक अवाम पाकिस्तान एक मुतवस्सत तबके की जमात है, गरीबों की जमात है, ना कि एलीट क्लास की। तो हमें ऐसे गरीब अवाम जो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, इनके मसाइल का हल इंशाअल्लाह तहरीक अवाम पाकिस्तान के फोरम से हल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा नाम है लईक अहमद खान, मैं तंजीम अल अखवान पाकिस्तान का सिंध का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ। आज जाहिद ऐवान भाई ने ये रौनक सजाई है, तो तर्जुमानी की है अवाम की, और ख़ास तौर पे बर्मा और बंगाली अवाम के लिए जिनके मसाइल इनको उजागर के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जाहिद ऐवान ने ये तहरीक इंसाफ बनाई है एक कौम के लिए, सिर्फ एक कौम, पाकिस्तानी कौम, कोई सूबा, कोई ज़ात, कोई मसलक नहीं, सिर्फ एक पाकिस्तान बने, जिसके लिए हमें मुल्क नसीब हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी तरक्की होगी जब हम एक कौम बनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया था। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से तकरीब में भी कहा गया और अपनी गुफ्तगू में कहा कि हम जितने भी बंगालियों के मसले हैं इंशाअल्लाह, वो शनाख्ती कार्ड का मसला हो या पानी का मसला हो या कोई भी मसला हो, आखिर हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।